Hello everyone, myself Shobha here. Welcome to Social Shabha. So students, here in this video I'm going to start chapter 1 in geography class 6, our solar system. So here in this video I'll summarize the chapter 1, our solar system. So students, this chapter and this video is going to be very beneficial to your online classes. So stay connected to me. So students, see, दिस चैप्टर इज़ अबाउट आवर सोलर सिस्टम. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम. मीन्स हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सी, planet, specially how and why the earth is a unique planet, and as well as about the constellation and many more facts regarding the solar system. Okay, so let's see. Students, first of all, this chapter is about the solar system. So solar system means the system in which it includes all the 8 planets, stars, and many celestial bodies and many types of objects you see in the sky also. Okay. So what are the celestial bodies? So students, at the night sky, what you see, आप रात में क्या देखते हो? आपको रात में स्काई में आप कौन कौन सी चीज़ें नोटिस करते हो? So I think you all and I also noticed that you see number of stars, means thousands of stars in the sky, and many objects like stars, planets, and some stars which forms a different pattern you see in the sky. So all these celestial bodies, the countless numbers of objects you see in the sky are the celestial bodies. Okay, जिसमें कि हमारे stars भी होते हैं, planets भी होते हैं, satellites, and as well अनदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू. ठीक है, जिसमें मेटेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स भी आते हैं, मेटियोर और मेटेरॉइड्स दोनों आते हैं. So students, let's see what is the universe. So everything that exists in the space is a part of universe. means हमारी existence ही किस में है? हमारी existence है हमारे universe में. Okay, so the solar system exists in the universe. ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में सारी चीज़ें आती हैं. आपने बिग बैंग थ्योरी सुनी होगी, जहाँ से हमारा यूनिवर्स, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारी गैलेक्सी ओरिजिनेट हुई थी. Let's see what is a galaxy. So galaxy is a vast cluster of stars, planets, gas and dust particles which are held together in the space due to the gravity. So galaxy जो है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे स्काई में, हमारा जो यूनिवर्स है उसमें मिलियंस ऑफ एग्जिस्टेंस करती हैं गैलेक्सीज़. बट अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स की गैलेक्सीज़ को रिकग्नाइज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप्स. सो गैलेक्सीज होती है 3 टाइप्स की होती हैं: स्पायरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर गैलेक्सीज. ओके, यू सी हियर इन दिस वीडियो पिक्चर टू. Next is stars. So stars are the twinkling dots that you see in the night sky. These are the giant balls of gas in the space which has their own light. ठीक है, stars क्या होते हैं? डस्ट और गैसेस के बने हुए बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं जिनकी खुद की लाइट होती है. ठीक है, सन इज़ द ओनली प्लानट, और सन इज़ द ओनली प्लानट विच इज़ द स्टार. ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का ओनली स्टार है, इसकी खुद की लाइट है. नेक्स्ट इज़ the constellation, which means that whenever you see in the sky at night, you see that there are stars which are forming some particular a certain pattern. This may be an animal shape, mythological character or an object. आप रात के टाइम पे देखते हो कि बहुत सारे स्टार्स का जो ग्रुप होता है वो एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट, एक एनिमल का शेप या कुछ भी एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है, उसको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, या जिसको हम नक्षत्र कहते हैं. सो दिस मे बी 10 इन ग्रुप्स और मोर देन मिलियंस. ओके, अबाउट 88 कॉन्स्टेलेशंस आर स्टिल रिकॉग्नाइज सो फार. इनको हम ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, हम उनको टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं.
लाइक उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, स्कॉर्पियन, कैनिस मेजर एंड टार्टस। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो शेप, दिस इज द उर्सा मेजर। ठीक है, जब आप नाइट में देखते होगे ये एक शेप फॉर्म होता है, उसको उर्सा मेजर कहा जाता है। ठीक है, जो एक सप्तऋषि होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट इज द सोलर सिस्टम। Solar system, it include, as I have already explained, it include the dwarf planets, moon, satellite, asteroids, meteorites and other objects too. So पहले हम बात करते हैं सन की। सन is intensively hot and it is in gaseous form. मीन्स गैसियस का मतलब ये नहीं है कि वो गैस के फॉर्म में उड़ रहा है, ओके, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, एंड इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर सोलर सिस्टम। ठीक है, सन जो है हमारी एनर्जी का एक सोर्स है। नेक्स्ट इट द प्लैनेट्स। सो प्लैनेट्स का मीन्स होता है, प्लैनेट जो होता है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मीन होता है वंडरर। वंडरर मतलब घूमने वाला। सो यू सी दैट प्लैनेट्स दे हैव मोशंस। तो ऑल द प्लैनेट्स हैव टू टाइप्स ऑफ मोशंस, द रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन। रोटेशन विच मीन्स द प्लैनेट्स विच आर मूविंग ऑन द पर्टिकुलर एक्सेस। रोटेशन मतलब पर्टिकुलर एक्सेस पर वो रोटेट करते हैं। जैसे कोई भी प्लैनेट है उसकी एक एक्सेस होती है। दिस इज द इमेजिनरी लाइन विच पासिस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू द सेंटर। किसी भी प्लैनेट के मिड से होते हुए एक लाइन जाती है जिसको एक्सेस कहा जाता है। ठीक है, उस एक्सेस पर ही प्लैनेट्स जो होते हैं ऐसे रोटेट करते थे कंटिन्यूसली। ठीक है, डे एंड नाइट। दूसरा मोशन होता है रिवोल्यूशन का। रिवोल्यूशन विच मीन्स रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब प्लैनेट्स का सन के अराउंड उनकी ऑर्बिट पर घूमना, उसको कहा जाता है रिवोल्यूशन। वेयर द डिफरेंट प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन, दे रिवॉल्यूट अराउंड द सन। अब आप देख रहे हैं हर प्लैनेट की अपनी एक ऑर्बिट है, मतलब एक पाथ है पर्टिकुलर, एंड ऑर्बिट इज अ पाथ ऑन विच अ पर्टिकुलर प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ऑर्बिट क्या होती है, एक पाथ होता है सर्टेन जिस पर पर्टिकुलर प्लैनेट सन के अराउंड में चक्कर लगाता है। ठीक है, अब किसी की स्पीड स्लो है, किसी की फास्ट है, कोई बड़ा है प्लैनेट, कोई छोटा है, कोई नियर है या कोई फार है, तो इट्स डिपेंड ऑन दैट। सो ईच प्लैनेट हैज़ द ओन ऑर्बिट ऑन विच दे मूव्स अराउंड द सन। और उनकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से सभी प्लैनेट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं सन के चारों ओर। So let us understand one by one about each planet. So students, first of all, the Mercury. Mercury is the smallest planet in our solar system. You can see, ये आप सीरीज में देख सकते हो। पहला तो जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सीक्वेंस में सन से फार होते हैं। सो मतलब मार्स, मैं आपको इजीली बता रही हूँ, आपको सारे प्लैनेट्स का जो सीक्वेंस इजी याद हो जाएगा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये एक सीरीज है, मतलब एक स्टेटमेंट के थ्रू आप प्लैनेट्स को सीक्वेंस में याद कर सकते हो। माई मीन्स मार्स, वी मीन्स वीनस, माई वेरी एफिशिएंट मतलब ई फॉर अर्थ, मदर means Mars, J for just means J for Jupiter, served S for Saturn, U for Uranus, us and nuts for Neptune। ठीक है, तो ये एक सीरीज है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू आप सीक्वेंस में प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हो। सो मार्स इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड दिस इज द smallest planet in our solar system and this is the fastest moving planet in our solar system। ये सबसे फास्ट जो है चक्कर लगाता है सन के चारों। इट टेक ओनली 88 days when it completes one revolution around the sun and in every 58.6 days it complete its one rotation on its axis। okay, next is its temperature is to vary from day to night। डे टाइम में यहाँ का पर टेम्परेचर होता है 400 सेंटीमीटर 400 सेंटीग्रेड। बाकी नाइट में ये हो जाता है -170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत वैरी करता है। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट
Venus is the hottest planet in our solar system just because its atmosphere, especially its 96% atmosphere is made up of the कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ का 96% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए ये हॉटेस्ट प्लानट है. एंड इट इज़ द सेकेंड नियरेस्ट प्लानट टू द sun, and this is also called the sister planet of the earth and ऑल्सो द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. ठीक है, आप शाम में सबसे पहले और मॉर्निंग में सबसे लेट तक जो स्टार देखते हो, जो प्लैनेट देखते हो, वो है हमारा वीनस. नेक्स्ट इज द मार्स. अर्थ. Earth is the third nearest planet to the sun and it's the fifth largest planet in our solar system. And Earth is the only planet which has life, means life supporting conditions are only available on the Earth. And Earth पर water है, air है, vegetations है, means all the suitable conditions for the survival of living beings are present on the Earth. So Earth is called the unique planet. और हमारी अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं जस्ट बिकॉज द 2/3 part of the earth is covered by water, means 2/3 surface of the earth is covered by water. So far from the earth, means out from the earth, we see that earth looks like a blue planet. Okay, next is Mars. Mars is referred as a red planet. मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है जस्ट बिकॉज देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ रेड सॉइल. यहाँ के कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो अर्थ से मिलते जुलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थ है द मार्स हैज़ 2 स्मॉल सैटेलाइट्स. मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं. ठीक है, another planets too, there are some special characteristics about the planets. ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है जुपिटर, then Saturn has rings around it. And one more thing which is very important, 4 planets near to the sun, means Mercury, Venus, Earth and Mars. These are called the inner planet, while the Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus are called the terrestrial planet according to their distance from the sun. Okay, next is satellites or moon. So these are the celestial bodies which revolve around the planets on their own orbit due to the gravity of the planets. ठीक है, so हर planet के चारों ओर कुछ satellites होती हैं जो घूमती हैं, तो उनको मून कहा जाता है, सैटेलाइट्स कहा जाता है. ठीक है, अर्थ की एक सैटेलाइट है, कौन सी है? नेचुरल सैटेलाइट विच इज़ द मून. अर्थ का जो मून है उसके कुछ फेजेस होते हैं. सो आफ्टर एवरी 15 days the moon increases and it seen completely. हम मून को 15 days में जैसे जैसे बढ़ता जाता है और उसको हम फुली देखते हैं completely, तो उसको कहा जाता है फुल मून डे. एंड आफ्टर दैट फुल मून डे the moon started to decreases and a day, and after the 15 days it disappears completely. So that day is called the new moon day. फिर नेक्स्ट डे से वो मून धीरे धीरे अपीयर होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे फुल हो जाता है एंड देन फिर से वो घटने लगता है. ठीक है, तो ये मून के फेजेस होते हैं. नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड बेल्ट विच इज़ फाउंड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच में, मीन्स 2 प्लैनेट्स के बीच में बहुत सारे सेलेस्टियल स्मॉल बॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट कही जाती है. Meteorites and meteors, these are the pieces of metal or rocks which come into the existence with the asteroid breaks up. जब asteroids होते टूटते हैं, ठीक है, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब घूमते हुए आपको स्काई में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, वो कहे जाते हैं मेटेओराइट्स. ओके, कॉमेट्स आपने देखा होगा, एक टेल लाइक ऑब्जेक्ट होता है जो आपको स्काई में दिखाई पड़ता है. दीज आर शाइनिंग टेल फ्लैशिंग. ठीक है, जो कि आपको रात में दिखाई पड़ता है. आप देखते हो कि टूटते हुए तारे टाइप का, मीन्स उसकी टेल दिखाई पड़ती है, तो वो कॉमेट्स होते हैं. ठीक है, हेली कॉमेट इज़ द बिगेस्ट कॉमेट recent, means it has been identified. ठीक है, so students, this chapter is about the solar system and I hope everything is clear here what we have discussed. तो आपको planets के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. Students, still is there is any doubt regarding any planet या any object which we have discussed, then you can ask it to me or comment box. ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपको ना समझ में आए. एंड थैंक यू.